So next topic is we are starting equity valuation. So last time we have done bond analysis in which we did bond valuation, return and risk. Next topic is about equity. So first of all, let us see what is meant by value of equity. So we know that there are different values of equity which are available. Like number one is face value. So when question is silent, so face value of equity share is taken as rupees 10. So then we are also given take up value. But mostly take up value of share is fully take up rupees 10. Or it may be less than face value also. So then we calculate what is your market value. So of equity share. Suppose your market value is rupees 25 and another value is your book value of equity share. So this one is also called as per balance sheet of company how much is value of share, which means what are equity funds and these equity funds are divided by number of equity shares. So in this way we have different values face value or paper value, market value of equity and book value of equity. But our objective is to determine a true value of equity. So what is objective of equity valuation? Objective is to determine so true value of equity share. So this true value is also called as intrinsic value of equity share. It means let us see our main objective is to determine a intrinsic value of equity share, and for this purpose there are different models. Models means methods also we can say, or these models are also called as approaches, different approaches to determine value of equity. Which means models or methods or approaches of equity valuation. So basically there are three models. So these models are number one, we know that on equity share, so shareholder will get dividends. So we can determine value of equity on the basis of dividend, which is called as dividend discount model. In short, it is called DDM, dividend discount model. If dividends are not available, then we can determine value of equity on the basis of earnings. Then we have earnings based model to determine value of equity. And another model is a free cash flow model. It means there are three approaches. Number one, dividend. Second is earnings. Number third, we will see another term, cash flow. Free cash flow model. So in case of dividend discount model, so there are further different possibilities. Sometimes company you pay constant dividend every year. So first model is constant dividend model.
which means company will pay same dividend every year. But mostly companies don't pay same dividend. So will be some increase in dividend in future. So it means then we calculate what is growth rate, means a rate of increase in dividend, and that growth rate is constant. So this is called constant growth model. And sometimes growth is also not constant. Then we have multi-growth model. These are different models, and in multi-growth we will see two cases. Number one, two-stage growth model, two-stage growth, and another one is our three-stage growth. So similarly, in case of earnings model, we will see different methods as well as in free cash flow. In case of earnings, we have basic model is earnings multiplier approach or multiplier model. So another one is given by Walker, which is called Walker's model, and another one is given by Gordon, which is called Gordon's model, and fourth one is realized yield model. So let us start one by one. So first of all, we will start with the dividend discount model. And before going this, let us say what is the meaning of intrinsic value of a share. So intrinsic value of equity share so is a present value of all future expected benefits. मीन्स जब भी कोई शेयर होल्डर इक्विटी शेयर परचेज करके है या उसमें कोई मनी इन्वेस्ट करके है उसको फ्यूचर में जो भी मिलेंगे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके डिविडेंड्स हैं जैसे जो शेयर होल्डर को मिलेंगे या आपकी अर्निंग्स हैं ये हमारे बेनिफिट्स हैं उन सबकी हमें कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको चाहिए होता है एक डिस्काउंट रेट रिक्वायर्ड रिकरेंस which means intrinsic value of equity share is the present value of all future expected benefits at required recurrence for shareholders। उसमें रिक्वायर्ड रिकरेंस क्या होती है शेयर होल्डर के लिए तो इसको हम कहते हैं जो कंपनी की कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसे कहा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू कंपनी। तो कंपनी कैलकुलेट करती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू कंपनी। तो कोई ये कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जैसे आपने कॉस्ट को कैपिटल किया होगा इंटर क्लासी में उसमें होता है कि कंपनी कितना डिविडेंड पे कर सकती है शेयर होल्डर को उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी कंपनी को तो वही रिटर्न बन जाती है शेयर होल्डर के लिए। उसमें कॉस्ट इक्विटी कंपनी जिसे जो रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न टू शेयर होल्डर इसको हम जनोट करते हैं जिसे जनोटेड बाय के ई। तो देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स के आपके डिविडेंड्स हैं अर्निंग्स हैं रिक्वायर्ड रिटर्न। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और इसमें सबसे पहला जो मॉडल है वो है आपका कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। तो ये रेयर केस होता है वैसे। इस केस में ये है कि कंपनी एज्यूम करती है कि वो कांस्टेंट डिविडेंड पे करेगी। अब जैसे जीरो टाइम पीरियड है
अब कोई शेयर होल्डर है, उसने शेयर परचेज किया है, तो उसका आपको मिलेगा परचेज प्राइस, जिसको हम P0 कहते हैं, जिसे जो परचेज प्राइस ऑफ शेयर। तो एक तरीके से ये मनी इन्वेस्ट हो रही है शेयर होल्डर की। अब शेयर होल्डर ने देखना है इसको फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्क यार आप देखेंगे लाइफ क्या है, इक्विटी की जो लाइफ होती है वो परमानेंट मानते हैं हम नॉर्मल केसेस में। तो इन केस ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, लाइफ ऑफ इक्विटी शेयर, तो दैट वन इज इनफाइनाइट। क्योंकि इक्विटी जो कैपिटल है कंपनी का वो परमानेंट कैपिटल है। जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी तब तक आपकी इक्विटी शेयर जो है कैपिटल वो चलता रहेगा। उसमें शेयर होल्डर के अकॉर्डिंगली लाइफ आपकी इनफाइनाइट है। तो अब आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा विच इज डिविडेंड। उसको हम डिनोट करेंगे D1। डिविडेंड को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये आपको मिलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी, जब तक कि कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी। और ये कांस्टेंट है, आपका हर साल सेम डिविडेंड पे कर रही है। तो इसका एक हमने फार्मूला किया था, जैसे आप टाइम वैल्यू मनी करते हैं उसमें फार्मूला आता है हमारा। तो दैट वन इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। तो इस केस में आपका क्या फार्मूला था, उसमें था कि जो भी आपकी फ्यूचर इनकम है, जैसे कि अगर एनुअल इनकम ए, ये आपकी चल रही है पूरी लाइफ तक, जिसे जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, इन सबकी हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो आप डिवाइड करके उसको 1+KE से, इस केस में फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 1+KE फॉर 2 ईयर, इस तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा 1+KE फॉर 3 ईयर अप टू इन्फिनिटी। और उन सबको कर लीजिए आप ऐड, तो दिस इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब ये कि हमने इसका फार्मूला डिराइव किया था, इसका फार्मूला ये था प्रेजेंट वैल्यू परपेचुअल ए अपॉन कर दो आर, आर है आपका के, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। फिर हम जीपी में फार्मूला करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक फार्मूला होता है आपका सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी इज ए अपॉन 1 - आर। इसमें आर क्या होता है आपका, आर है कॉमन रेशो, राइट, आर इज कॉमन रेशो। तो अब आपकी देखो कॉमन रेशो क्या होगी, जब आप सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, या थर्ड को डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म से, तो उसमें कॉमन जो रेशो है वो आपकी बन रही है 1/1+KE। तो उसके बेस को ये फार्मूला डिराइव हो जाता है। तो लेट अस सी हाउ इट इज डिराइव्ड। अब आपने देखो इसमें पुट किया सम टू इन्फिनिटी, हम निकाल रहे हैं, विच मीन्स टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी प्रेजेंट वैल्यूज हैं आपकी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर, थर्ड, अप टू इन्फिनिटी। उन सबका जो टोटल है वो इस फार्मूले से डिटरमिन हो जाएगा। ए फर्स्ट टर्म है आपकी जिसमें, तो वो ए अपॉन 1+KE। इसको हमने डिवाइड किया 1 माइनस कॉमन रेशो, कॉमन रेशो है 1/KE, 1+KE। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/KE, नीचे एलसीएम लेंगे हम, ए डिवाइडेड बाय 1+KE, तो किसी 1+KE -1 डिवाइडेड बाय 1+KE। तो 1+KE देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो रह गया आपका A/K, तो जिसमें लीजिए A/K। तो अपनी जो एनुअल इनकम है उसको हम कहते हैं, किसी की कैपिटलाइज वैल्यू, ये कैपिटलाइज वैल्यू है आपकी ऑफ एनुअल इनकम। It means in case of a constant dividend model, what is the value of share? Value of a share जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको हम डिनोट करेंगे V0 से। जीरो मीन्स प्रेजेंट टाइम पीरियड, जो जीरो टाइम पीरियड है आपका, कि ये भी जीरो, दैट इज इक्वल टू एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्या है आपकी, डिविडेंड जो आपके कांस्टेंट है एवरी ईयर, उसको आप कर दो कैपिटलाइज डिवाइडेड बाय के, ये आपकी वैल्यू शेयर बन जाएगी इन केस ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड। ये फार्मूला कहाँ से डिराइव होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी से, जो हम जीपी से डिराइव करते हैं।
वैसे मैं आपको फार्मूला की एक्सप्लेनेशन भी समझा रहा हूँ, तो आपको फार्मूला ताकि याद रहे, माइंड में क्लियर रहे कि हाउ इट इज डिराइव्ड। तो ये था सिंपल केस, जब कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पे करती है, बस डिविडेंड को डिवाइड करके तेईस से वो आपकी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अब आपको मेंशन किया है, तो एक फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज़, शेयर होल्डर ने शेयर को परचेज किया है 25 रुपीज़। कंपनी डिविडेंड पे करेगी फ्यूचर में, जो एक्सपेक्टेड है डिविडेंड वो है आपका 3 रुपीज़ अप टू इन्फिनिटी। और जो इन्वेस्टर को रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए वो दिस इज 12%। तो देन हाउ मच इज अवर वैल्यू ऑफ शेयर, या आप 10% कह सकते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न 10, तो वैल्यू शेयर इज डिविडेंड अपॉन के। तो डिविडेंड इज इक्वल टू अवर दिस इज 3 अपॉन 0.10, 30 रुपीज़ आपकी वैल्यू आ जाएगी शेयर की। ये इसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ शेयर। अब देखते हैं सेकंड केस है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। दिस इज सेकंड मॉडल कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो पहले तो हम इसमें देखें कि ग्रोथ होती क्या है, फिर उसका फार्मूला डिराइव करेंगे हम। तो व्हाट इज ग्रोथ? तो ग्रोथ का मतलब है यहाँ पर व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिविडेंड्स, चेंज इन डिविडेंड्स ऑन बेसिस ऑफ पास्ट डिविडेंड्स। तो जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है पिछले कई सालों से, उसमें कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है आपका, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, एंड जिसे कहा ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स। तो अब इसको कैलकुलेट करने के हमारे दो मेथड्स हैं ग्रोथ को। तो लेके से डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स। नंबर वन है आपका पास्ट डिविडेंड्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन में, ऑन बेसिस ऑफ पास्ट डिविडेंड्स। तो फॉर एग्जांपल आपको डिविडेंड दिए हैं, आज जैसे जीरो पीरियड है, जिस टाइम आपको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब पिछले 4-5 सालों के डिविडेंड्स आपको दिए होते हैं, -1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो आपने सबसे पुराना डिविडेंड देखना है, तो ये 2 रुपये का, आज आपका चल रहा है 3 रुपये, बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, मे बी 2.10 है, 2 पॉइंट जिसे जो 25 है, 2.50 है, 2.8 है, इस तरीके से डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहेगा। पर आपको देखना है सबसे पुराना डिविडेंड और सबसे जो लेटेस्ट डिविडेंड है, तो उसकी ग्रोथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला अप्लाई होता है कि जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस ग्रोथ ऐड कर दीजिए और एन नंबर ऑफ ईयर। ये आपके बन गए 5 साल। तो 5 साल पहले डिविडेंड था आपका 2 रुपये, इसकी ग्रोथ आपकी मिसिंग है, 5 साल में आपकी वैल्यू हो गई है 3 रुपये। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डिविडेंड है आपका एन ईयर का, और डिविडेंड था आपका जीरो पीरियड 1 प्लस ग्रोथ और एन ईयर। देखिए रिवर्स देखें, ये जीरो बन गया आपका 1 2 3 4 एंड 5, जिसे जबर एन। तो एन नेक्स्ट डिविडेंड क्या है, जो जीरो में था उसमें ग्रोथ ऐड करके उतने टाइम की वो है लास्ट डिविडेंड आ जाएगा। अब आपको ये दिया है तो जिसे जो 3 जिसे जो 2 ग्रोथ आपकी मिसिंग है 5 सालों की, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल से। 1 प्लस जी रेट टू पावर 5 इज 1.5, 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। तो अब आपको देखना है कि कितनी ग्रोथ लेनी है जिसकी पावर 5 1.5 बन जाए। तो हीट एंड ट्रायल से हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम कर सकते हैं लेट, जैसे आपने इनिशियली ली लेट ग्रोथ ही 10%, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.1 रेज टू पावर 5।
तो उसको चेक करो, देखो कितनी ग्रोथ आ रही है आपकी। 1.1 इंटू 2, 3, 4, 5, जिसे 1.611, तो ये ज़्यादा हो गई है, हमें 1.5 चाहिए। तो लेट्स राइट ग्रोथ इज 8%। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1.08 रेज टू पावर 5, 1.08 इंटू 2, 3, 4, 5, जिसे जो 1.247, अप्रोक्सीमेटली 5 के इक्वल है, 1.5। तो देयर फॉर वी कैन से दैट कि जो आपकी एवरेज ग्रोथ रेट है वो 8% है। या आप इन दोनों में इंटरप्लेट कर सकते हैं, स्लाइटली 8 मे बी 0.5 हो सकती है, स्लाइट वेरिएशन है क्योंकि 1.5 है। अब ये ग्रोथ आ गई, ये कि पास्ट डिवीजन के बेस पर। और दूसरा एक मेथड है हमारा ग्रोथ को कैलकुलेट करने का, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट मेथड, दैट इज अवर रिटेंशन रेशो मेथड। रिटेंशन रेशो मेथड, जैसे हमें पता है कि कंपनी जब स्टार्ट होती है वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं पर शेयर कितना है, ईपीएस। तो चलो ईपीएस है 5 रुपये। अब इसमें जो कुछ कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो उसके लिए कितना परसेंट डिविडेंड पे कर रही है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो, इसका नाम है डीपी रेशो। सपोज कर लो 60% कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो ये बन जाएगा 60% ऑफ 5 रुपीज। 3 रुपीज आपने डिविडेंड पे करी है। जो बैलेंस प्रॉफिट है वो कंपनी रिटेन करती है, जिसे कहा जो रिटेंशन रेशो। तो रिटेंशन रेशो को हम स्मॉल बी से शो करते हैं। इसका मीनिंग होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से विच आर रिटेन्ड बाय कंपनी, रिटेन्ड बाय कंपनी। इसका फार्मूला है 1 माइनस जीपी रेशो। जैसे जीपी रेशो 60% है, वो माइनस जो हो रहा है ये आपका 40%। तो ये जो प्रॉफिट रिटेन करती है कंपनी, ये री इन्वेस्ट हो जाते हैं कंपनी के बिजनेस में। तो दीज आर री इन्वेस्टेड बाय कंपनी। इसको री इन्वेस्ट करने से ये हमारे इक्विटी फंड्स हैं एक तरीके से। जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का वो इक्विटी का फंड होता है, तो उसको हम कहते हैं ये आर री इन्वेस्टेड, इसमें दी जा रहे इक्विटी फंड्स। जब इसको कंपनी री इन्वेस्ट करती है, उसके ऊपर कंपनी को रिटर्न मिलती है एक्स्ट्रा, तो उस रिटर्न का नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इन फंड्स के ऊपर कितनी रिटर्न मिलेगी, इक्विटी, क्योंकि ये इक्विटी फंड्स हैं आपके, देखिए कहा गया आरओई। जितना प्रॉफिट आप रिटेन करोगे उससे जो आपको मिलेगी रिटर्न, तो वही आपकी ग्रोथ बनती है। तो हमारा फार्मूला ये होता है ग्रोथ का, अभी वेरीफाई भी करके हैं इसको। ग्रोथ रेट विच इज कॉल्ड जी, तो दैट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो आपकी कितनी है, कितना प्रॉफिट आप रिटेन कर रहे हैं, और इनटू उसके ऊपर रिटर्न कितनी मिल रही है विच इज आर ओ। तो उसको हम शो करते हैं, ग्रोथ रेट जो है आपकी जी, रिटेंशन रेशो को हम स्मॉल बी से शो करते हैं, बी इंटू आर ओ। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फार्मूला है फॉर ग्रोथ रेट। कई क्वेश्चन में ये अप्लाई हो जाता है। इसकी वेरिफिकेशन देखते हैं, पर इसमें एक एजम्पशन होती है हमारी कि जो जीपी रेशो है ये कांस्टेंट रहेगी आपके फ्यूचर में, ये चेंज नहीं करेंगे हम। तो यदि जीपी रेशो चेंज होगी फिर ग्रोथ भी चेंज हो जाएगी, इसमें जीपी रेशो है कांस्टेंट। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं कि ये फार्मूला हमारा करेक्ट है या नहीं। तो एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे अभी हमने लिया भी था, एक ईपीएस ली थी हमने। ईपीएस है आपकी 5 रुपीज, और हम ले रहे हैं जीपी रेशो है आपकी 60%, उससे डिविडेंड पर शेयर आ गया आपका 3, बाकी हमने कर दिया रिटेन 2 रुपीज पर शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दी है आर ओ ई, सपोज दिस इज 15%। देखिए हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, ग्रोथ इज रिटेंशन इंटू आर ओ ई। अब देखो कितना रिटेंशन है हमारा, 60% डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो 40% हम रिटेन कर रहे हैं, 40%, और उसके ऊपर रिटर्न आपको मिल रही है 15%।
तो 15% को 40% की 6% आपकी ग्रोथ आ गई। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करता हूँ मैं कि ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। अब आप देखो ईयर 1 में दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ दिस फार्मूला। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि ग्रोथ कैसे डिराइव होती है। तो आपके पास ईयर 1 है, जैसे ईयर 1 में आपने ईपीएस ली है अब 5 रुपीज़, उसमें से डिविडेंड दे दिया हमने 60% फ्री, बाकी आपने कर दिया रिटेन 2 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर ईपीएस क्या होगी हमारी, 5 रुपये को हमें मिल ही रहा है प्रॉफिट अपने बिजनेस से, तो 5 रुपीज़ और प्लस ये जो 2 रुपये आपने री इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर भी हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगी 15%, विच इज 15%। लेकिन अब आपकी ईपीएस आ जाएगी, ये बन गई आपकी 30 पैसा, तो 5.3। अब देखो उसमें से फिर आप 60% डिविडेंड पे कर दोगे, हमारी जीपी रेशो है 60%, तो 5.3 का आपने पे किया 60% डिविडेंड 3.18। अब आप चेक करो कि डिविडेंड में कितना इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ रेट क्या है आपका, परसेंटेज राइज इन डिविडेंड। तो राइज है या फॉल है वही ग्रोथ है, मोस्टली ग्रोथ पॉजिटिव ही होती है, डिविडेंड से इंक्रीज होता है। तो कितना चेंज आया है आपका, 3.18 माइनस 3, इसको पुराने से कंपेयर करो, इसकी परसेंटेज निकालो, पुरानी डिविडेंड है तो 18 पैसे आपको मिला एक्स्ट्रा डिविडेंड इनटू 100 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6%। आपकी ग्रोथ आ गई जो फार्मूले ने वेरीफाई कर। अब देखते हैं वैल्यू शेयर कैसे कैलकुलेट होगी वंस वी नो ग्रोथ। अब हमारी जंक्शन है कि ये ग्रोथ आपकी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में। वैल्यू से पहले कि आप और फार्मूला देखो, देखो आपका ग्रोथ का फार्मूला है रिटेंशन इनटू आरओई, और रिटेंशन कहाँ से आएगी आपकी, रिटेंशन इज 1 माइनस जीपी रेशो, ये आपको सारे फार्मूले ध्यान रखने हैं, इनटू आरओई। अब आरओई का फार्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। आरओई का बेसिक फार्मूला तो यही होता है कि प्रॉफिट कितना है इक्विटी के लिए, प्रॉफिट फॉर इक्विटी, और हम इसको डिवाइड करते हैं इक्विटी फंड्स कितने हैं आपके, जिसको सिंपली इक्विटी भी कहते हैं, इनटू 100। अच्छा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी में देखो क्या क्या आता है, पैट में से यदि प्रेफरेंस शेयर है तो उसका डिविडेंड माइनस हो जाता है। इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व हैं सरप्लस हैं, ये सारी इक्विटी मानी जाएगी इनटू 100। तो एक और फार्मूला है आपका आरओई का, तो हमारा बेसिक फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड्स। अब आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एनई एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, ये बन जाता है ईपीएस। तो जब इक्विटी फंड को डिवाइड करके और नंबर ऑफ शेयर से, वो बन जाते हैं इक्विटी की वैल्यू कितनी है पर शेयर, उसको कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। ये बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी पर शेयर, जिसको हम डिनोट करते हैं बुक वैल्यू को ईपीएस, बुक वैल्यू डिनोट होती है बीवी इनटू कर दो 100। तो ये भी आपका एक फार्मूला बनाता है आरओई। तो कई बार आरओई या तो कई बार गिव के क्वेश्चन में प्रॉफिट अपॉन इक्विटी कर दो, और कई बार पर शेयर चल रहा होता है क्वेश्चन, ईपीएस है बुक वैल्यू है, उससे भी आपकी आरओई आ जाएगी। तो अब देखते हैं वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स, जो भी फ्यूचर के आपके डिविडेंड्स हैं एंड विच आर ग्रोइंग, और जो ग्रो कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, और कांस्टेंट ग्रोथ रेट है एंड फॉर इनफाइनाइट पीरियड। तो बेसिक रूल है आपका कि ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी फॉर होल लाइफ इनफाइनाइट पीरियड।
उसमें फ्यूचर के जितने भी डिविडेंड्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं कांस्टेंट ग्रोथ रेट के ऊपर, और उन फॉर इनफाइनाइट पीरियड उन सबकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो उसमें सब ग्रोथ हमने ले ली है, तो अब देखिए फार्मूला क्या बनेगा आपका। तो पहले मेंशन करते हैं, जैसे अब आपके ये फ्यूचर के डिविडेंड्स हैं, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है और किसी की बी, वो बन जाएगा, ये कोई जीरो पीरियड है आपके पास, यहाँ पे अब आपके पास प्राइस है शेयर का, डी जीरो है। तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कैसे निकालोगे, इस डिविडेंड में ग्रोथ ऐड कर दो, जी जीरो इंटू वन प्लस जी फॉर 1 ईयर, उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस के ई फॉर 1 ईयर। ऐसे सेकंड ईयर का, अब डी जीरो में ग्रोथ ऐड हो जाएगी आपकी 2 साल की, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी दैट इज आल्सो फॉर 2 ईयर। ऐसे थर्ड ईयर का, किसी बी जीरो इंटू वन प्लस जी फॉर 3 ईयर अपॉन वन प्लस के ई फॉर 3 ईयर। ये फ्यूचर के डिविडेंड्स हैं, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं और उन सबका करेंगे टोटल। तो इट मीन्स इन सबको किया आपने ऐड, और इसको आपने ऐड करना है अप टू इंफिनिटी। तो जिसे कहा जो वैल्यू ऑफ अ शेयर, इन सबका जो टोटल है वो वैल्यू आ जाएगी शेयर की। अब आप देखोगे ये फिर वही बन जाएगी सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपी। अब मैं फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ पहले, तो आप देखिए सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपी, उसका फार्मूला था ए अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। अब इसमें कोई एनुअल ए क्या है, ए होती है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है आपकी। तो ए है आपकी जी जीरो इंटू वन प्लस जी डिवाइडेड बाई वन प्लस के ई डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो चेक करो, सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट से, तो देखो जी जीरो कैंसिल, वन प्लस जी की एक पावर कैंसिल, ऐसे वन प्लस के ई की एक पावर कैंसिल। थर्ड को सेकंड से डिराइव करो, यहाँ भी जी जीरो कैंसिल, वन प्लस जी की दो पावर कैंसिल, वन प्लस के की टू पावर कैंसिल, तो आपकी जो कॉमन रेशो है आर, वो आ जाएगी वन प्लस जी डिवाइडेड बाई वन प्लस के। ये कॉमन रेशो के सेकंड टर्म को जो फर्स्ट से डिवाइड करोगे जो बचेगा, ऐसे थर्ड को सेकंड से डिराइव करोगे, ये सेम है आपकी, तो ये जीपी मानी जाएगी। तो सम टू इन्फिनिटी हम लगा रहे हैं जीपी का फार्मूला। तो वन माइनस कॉमन रेशो वन प्लस जी अपॉन वन प्लस के, इसको सोल्व कर रखे हैं। न्यूमिरेटर है आपका वी जीरो इंटू वन प्लस जी अपॉन वन प्लस के ई, नीचे आपने लिया एलसीएम वन प्लस के ई माइनस वन माइनस जी होल डिवाइडेड बाय वन प्लस के। वन प्लस के ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फार्मूला रह जाता है वैल्यू शेयर। वट इज वैल्यू शेयर, देखो डी जीरो उसमें हमने लिया वन प्लस जी, जिस वन नीचे वन माइनस वन कैंसिल, के ई माइनस जी रह गया आपका। तो इसका फार्मूला है जी जीरो में जब ग्रोथ ऐड कर दी, ये बन जाता है जी वन अपॉन के ई माइनस जी। दो फार्मूले हैं आपको, तो ये बन जाएगी वैल्यू शेयर। अब कौन सा एग्जाम में लगाना है अपने क्वेश्चन में डिपेंड करता है। यदि आपको जी जीरो दिया, जी जीरो होता है करंट डिविडेंड, तो इसका मतलब है इसमें ग्रोथ इंक्लूड नहीं है, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, जी जीरो है। कई बार वो क्वेश्चन है डी वन दे देते हैं डायरेक्ट आपको, डी वन को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। या वो लिखते हैं नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, मीन जो फ्यूचर में मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। इसका मतलब है कि अब इसके अंदर आपकी ग्रोथ इंक्लूड है पहले से, तो आपने इनटू वन प्लस जी नहीं करना है। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के, तो उसके अकॉर्डिंगली, और ये हो जाएगी कैपिटलाइजेशन फैक्टर। तो अब देखो ये इसको हम कंपेयर करते हैं, अभी हमने जो किया था कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल में, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल में हमारी शेयर की वैल्यू थी डी अपॉन के ई माइनस के ई। के ई क्या थी, रिक्वायर्ड रिकरेंस, पर उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। इसमें के ई माइनस जी का मतलब होता है नेट रिक्वायर्ड रिकरेंस, के ई माइनस जी, जिसे कहा गया नेट रिक्वायर्ड रिटर्न बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को नेट रिटर्न कितनी मिलनी चाहिए,
ये जैसे कई है अब आपकी 10% और कुछ ग्रोथ हो रही है आपकी 6%। इसका मतलब होता है शेयर होल्डर को रिकरिंग चाहिए 10% की, पर 6% को ग्रोथ उसको ऑटोमेटिकली मिल रही है। अब नेट रिक्वायरमेंट उसकी रह गई 4% सिर्फ। तो एक तरीके से हमने डिविडेंड को कैपिटलाइज कर दिया नेट रिक्वायर्ड रिटर्न से, वो बन गई शेयर की वैल्यू। तो अब हमने देखा V0 आपने निकाला, तो इसी फार्मूले को यूज करके अब हम एक इससे शेयर की फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहले आपको दिया है क्वेश्चन में, देखा गया है 0 टाइम पीरियड है, फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज, प्राइस है परचेज 25, V0 दिया है आपको 3 रुपीज, कई दिए हमें 10% और ग्रोथ आपको दी है 6%। तो आपने फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू शेयर आ गई, आपको वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करनी है। V0 है तो आपने फार्मूला अप्लाई किया, V0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के अपॉन के माइनस जी। V03 ग्रोथ है आपकी 6% और के है आपकी 10% माइनस 6%, जिसे 3.18 अपॉन 0.04। दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर, 3.18 divided by 0.04, 79.25, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसी फार्मूले को यूज करके हम डिटरमिन करते हैं थर्ड। अब देखिए आपको निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर, एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर। तो अब हमने V0 निकाला, तो V0 का फार्मूला ये है आपका, V0 में जब आप ग्रोथ ऐड कर रहे हो ये बन जाता है V1, नीचे आ गया आपका के माइनस। देखिए अब इस फार्मूले को कंपेयर करें, देखो जब आप ले रहे हो डिविडेंड फर्स्ट ईयर का तो वैल्यू आ रही है 0 में, एक साल पहले। इट मीन्स अब देखिए सपोज चलो आपको वैल्यू निकालनी है आफ्टर 3 ईयर, तो आपको डिविडेंड लेना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर मीन्स फोर्थ ईयर, तो उसका फार्मूला बन जाएगा D4 और आप कर दो कैपिटलाइज इसको के माइनस जी से। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर। फ्यूचर वैल्यू मीन्स तीसरे साल में कितनी वैल्यू होगी शेयर की। आपको वैल्यू निकालनी है सपोज चलो फिफ्थ ईयर में, तो आपको डिविडेंड लेना है 6 ईयर का अपॉन के माइनस जी। तो डिविडेंड आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, 6 ईयर का डिविडेंड क्या बनेगा, D0 है आपके पास, इसमें ग्रोथ ऐड कर दो 6 सालों की, वो D6 बन जाए। तो दैट इज आवर एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर। तो एक इसी फार्मूले को हम यूज करके एक और फार्मूला बनाते हैं। तो आप देखिए व्हाट इज दैट फार्मूला, तो दैट मीन जो प्राइस अर्निंग रेशो, फोर्थ फार्मूला है आपका। समटाइम दे आस्क टू कैलकुलेट प्राइस अर्निंग रेशो, उसको पीई रेशो कहते हैं हम। जो बेसिक फार्मूला है प्राइस अर्निंग रेशो का, वो है आपका कि जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, इट मीन्स जैसे जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ईपीएस, वो कितने टाइम्स है ईपीएस का, उसका नाम है प्राइस अर्निंग रेशो। सो पीई रेशो। अब जो प्राइस ऑफ शेयर है वो आपने ये कैलकुलेट किया है, जिस वन डिविडेंड अपॉन के माइनस जी। तो इट मीन्स प्राइस अर्निंग रेशो है प्राइस, उसको हम डिवाइड कर देंगे ईपीएस से। प्राइस का फार्मूला है आपका गिवन गिवन, तो गिवन था आपका G0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी, ये प्राइस है शेयर का, और डिवाइड किया हमने इसको ईपीएस से। तो आप देखोगे आपका फार्मूला बन जाता है प्राइस अर्निंग रेशो का, प्राइस अर्निंग रेशो डिविडेंड को जब डिवाइड करके अब ईपीएस से, वो बन जाती है जीपी रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो। इनको आगे 1 प्लस जी, नीचे है आपका के माइनस जी, और जीपी रेशो है आपकी 1 माइनस रिटेंशन रेशो, तो इनटू 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और देखिए बाई चांस आपका G1 है एक्सपेक्टेड है, तो बस फिर आपका ग्रोथ नहीं आएगा 1 प्लस जी।
राइट। तो आप डायरेक्ट प्राइस अर्निंग रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डाटा दिया है क्वेश्चन में कि जो जीपी रेशो है, जैसे अभी हम ले रहे थे, जैसे ये 60% है और जो आपकी ग्रोथ है वो है 6%, और कई आपको दी है जिसे जो 10%। तो आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज योर प्राइस अर्निंग रेशो। बस आप अप्लाई कर दीजिए प्राइस अर्निंग रेशो, जीपी रेशो 60% इंटू 1 + जी 0.06, कई माइनस जी 0.10 माइनस 0.06। ये भी 60% भी 0.6 में आ जाएगी डेसिमल में। तो गेट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1.06, जैसे 0.636 अपॉन 0.04, तो डिवाइडेड बाय 0.04। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज 15.9 टाइम्स। तो 15.9 टाइम्स आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो है। तो ये हमने डिस्कस किया कि दो मॉडल्स, मेन कांस्टेंट डिविजन मॉडल एंड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टी ग्रोथ मॉडल। उसमें भी दो केस हैं, 2 स्टेज एंड 3 स्टेज मॉडल।